हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको विलियम सी डगलस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब द थिंग्स द सेंसेस द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। दिल्ली से रानीखेत के अपने मार्ग में लेखक ने जो चीज़ें तथा दृश्य देखे उनका वर्णन करो। और व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द कंट्री साइड विच विलियम सी डगलस noticed while going from New Delhi to the Himalayas। ग्रामीण क्षेत्र की वे मुख्य बातें क्या थीं जिनको लेखक ने नई दिल्ली से हिमालय जाते हुए देखा था। आंसर, विलियम सी डगलस ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द USA विजिटेड इंडिया इन 1950। In the lesson A Girl with a Basket, he describes the things and sense which he saw on his way from Delhi to Ranikhet। The route from Delhi to Bareilly passed through the plain of the upper Ganga river. The Ganga was in flood. The dirty water looked brown. Thousands of acres of rice fields were covered with the water of the swelling Ganga. To the north of the railway track there were jungles. There was high grass, higher than men, of miles and miles of great expanses. There were places with clumps of trees, also the thicknesses of the high grass and trees gave shelter to dangerous tigers, elephants, pythons and cobras. The writer described a number of trees in their natural shape. He found the air humid. He also found monkeys with their babies clinging to them. There were villages which had mud huts thatched with grass and bamboo. The walls and the thatch were covered with the pumpkin vines with yellow flowers in them. The natural scenery filled the heart of the writer with inner happiness। विलियम सी डगलस USA के सर्वोच्च न्यायालय का एक जज 1950 में भारत आया था। अ गर्ल विद ए बास्केट में वह उन चीज़ों व दृश्यों का वर्णन करता है जो उसने दिल्ली से रानीखेत तक की अपनी राह में देखी थी। दिल्ली से बरेली तक वाला रास्ता गंगा नदी से उत्तरी मैदान से होकर गुजरा था। गंगा में बाढ़ आई हुई थी। गंदा पानी कत्थई रंग का दिखता था। उफनती हुई गंगा के पानी में हजारों एकड़ धान के खेत डूबे हुए थे। रेल की पटरी के उत्तर की तरफ जंगल थे। मीलों मीलों तक के विशाल विस्तार में आदमी से भी ऊंची घास थी। वृक्षों के झुंड वाले स्थान भी थे। ऊंची ऊंची घास तथा वृक्षों के घनेपन ने खतरनाक शेरों, हाथियों, अजगरों और सांपों को शरण दे रखी थी। लेखक ने अनेक वृक्षों का वर्णन उनके प्राकृतिक स्वरूप में किया है। उसने पाया कि हवा में नमी थी। उसमें भी यह भी पाया कि बंदरों से उनके बच्चे चिपके हुए थे। घास फूस व बांस के छप्परों से ढकी हुई कच्ची मिट्टी की झोपड़ियां वाले गांव भी थे। दीवारों व छप्पर पीले फूल वाली काशी फल कद्दू की लताओं से ढके हुए थे। प्राकृतिक दृश्यों ने लेखक के हृदय को आंतरिक प्रसन्नता से भर दिया। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिग्निफाइड बिहेवियर ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल एज पोर्ट्रेड बाय द विलियम सी डगलस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम सी डगलस के द्वारा चित्रित शरणार्थी बालिका के सम्मानजनक व्यवहार का वर्णन कीजिए। और वाई हैड विलियम सी डगलस फॉलन इन लव इन इंडिया। यूपी 1990 में आया था। विलियम सी डगलस भारत से प्रेम क्यों करने लगा। और हाउ डिड द गर्ल विद ए बास्केट इम्प्रेस द राइटर। टोकरी वाली बालिका ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया। आंसर, द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन ऑन हिज वे टू रानीखेत। When he got down at one station, a group of refugee children surrounded him. They were selling reeds baskets with simple designs. The writer bought some baskets. His arms were filled with them and he did not want to buy any more. Among the refugee children
There was a girl of 9 years. She wanted to sell her basket to the writer. She wanted a rupee and a half for it. She was very poor. She was dashed in rage. There were tears in her eyes. Her voice was very touching. The writer had already brought a number of baskets. He had no need to buy any more. The author was deeply moved by the poverty and pitiable pleading of the girl. He therefore put 15 cents into her basket as charity. This hurt her self-respect. She was starving and dressed in rage, but she had a strong sense of self-respect. She did not want the money as alms. She raised her head high, and with pride and full grace she returned the money to the writer. Her sense of self-respect impressed the writer so deeply that he bought her basket. The girl wiped her tears, smiled, and ran towards her hut. In this way, the writer was deeply touched by the dignified behavior of the girl. In fact, the girl was a symbol of Indian culture. This incident was one reason for his having fallen in love with India. लेखक नई दिल्ली से रानीखेत तक की अपनी यात्रा में रेल के द्वारा बरेली के लिए जा रहा था। जब वह एक स्टेशन पर उतरा तो शरणार्थी बालकों के एक समूह ने उसे घेर लिया। वे लोग सदा बनावट की सरकंडों वाली कुछ टोकरियां बेच रहे थे। लेखक ने कुछ टोकरियां खरीदी। उसकी बाहें उन टोकरियों से भर गई तथा और अधिक टोकरियां खरीदने का उसका मन नहीं था। शरणार्थी बच्चों के मध्य में 9 साल की बालिका थी। वह लेखक को अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। उसके लिए वह 1.5 रुपया चाहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह चिथड़े पहने हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी वाणी बहुत मर्मस्पर्शी थी। लेखक पहले से ही अनेक टोकरियां खरीद चुका था। उसे और अधिक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़की की गरीबी व दयनीय विनती ने लेखक को गहराई तक द्रवित कर दिया। इसलिए उसने उसकी टोकरी में 15 सेंट खैरात के रूप में डाल दिए। इस बात ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। वह भूखों मर रही थी और चिथड़े पहने थी, परंतु उसमें आत्मसम्मान की प्रचंड भावना थी। वह पैसे को भीख के रूप में नहीं चाहती थी। उसने अपना सिर ऊंचा किया तथा गर्व व पूरी गर्मा के साथ उसने वे पैसे लेखक को लौटा दिए। उसकी आत्मसम्मान की भावना ने लेखक को इतनी गहराई तक प्रभावित कर दिया कि लेखक ने उसकी टोकरी खरीद ली। लड़की ने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और अपनी झोपड़ी की तरफ भाग गई। इस भांति लेखक उस बालिका के शानदार व्यवहार से अधिक प्रभावित हुआ। वास्तव में वह लड़की भारतीय सभ्यता की एक प्रतीक थी। भारत के साथ उसके प्रेम में पड़ने का यह एक कारण था। क्वेश्चन: व्हाट इम्प्रेशन डिड द राइटर कैरी अबाउट द इंडियन रिफ्यूजीज? भारतीय शरणार्थियों के बारे में लेखक की क्या धारणा बनी थी? आंसर: विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट of America, visited India in 1950. In this lesson, he described the poor condition of the refugee. On 15th August 1947, India was divided. Pakistan came into being. The author had full knowledge of its political background. Therefore, he formed his own impression of the Indian refugees when he saw them in India. He knew that about 9 million people had to leave their homes and property. They came to India for their safety. The author knew that the danger of religious madness was the cause of leaving the old homes. They came from Pakistan on foot and carried very little food and article with them. Many of them got so tired and hungry that they died on the way. The author knew that the refugee had got settled in cheap huts. They made simple things and sold them for their little income. They could not earn enough to buy tea, coffee, fat, sweets and meat.
They ate only one meal a day, which consisted of an onion, a piece of bread, a bowl of pulse, and a bit of goat cheese. He knew that the children who surrounded him to sell their basket belonged to the refugee families. They were at the edge of hunger, but they had a high sense of self-respect. This was the imप्रेशन द राइटर कैरीड अबाउट द इंडियन रिफ्यूजीज। विलियम सी डगलस अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का एक जज 1950 में भारत घूमने आया। इस पाठ में वह शरणार्थियों की गरीबी हालत का वर्णन करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया। लेखक को इस बात की राजनीतिक पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी थी, इसलिए जब उसने शरणार्थियों को भारत में देखा तो उसने उनके बारे में स्वयं अपनी स्वयं की धारणा बनाई। वह जानता था कि लगभग 90 लाख लोगों ने अपने घर बार और संपत्ति छोड़नी पड़ी। अपनी सुरक्षा के लिए वे भारत आ गए। लेखक को जानकारी थी कि पुराने घर बार को छोड़ने का कारण धार्मिक पागलपन था। वे लोग पैदल चलकर पाकिस्तान से यहाँ आए तथा अपने साथ बहुत कम भोजन व सामान लेकर चले। उनमें से बहुत से लोग इतने थक गए और भूखे हो गए कि वे रास्ते पर ही मर गए। लेखक जानता था कि शरणार्थी सस्ती झोपड़ियों में बस गए थे। वे मामूली चीज़ें बनाते थे और उन्हें थोड़ी सी आमदनी पर बेच देते थे। वे इतना भी नहीं कमा पाते थे कि चाय, कॉफ़ी, चिकनाई, मिठाई और मांस खरीद सकते। एक दिन में केवल एक बार खाना खाते थे, जिसमें एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरा दाल और बकरी के दूध से बनी पनीर का छोटा टुकड़ा होता था। वह जानता था कि वे बच्चे जिन्होंने उसे घेर रखा था ताकि वे उसे अपनी टोकरियां बेच सकें, शरणार्थी परिवारों के हैं। वे भूख के बिना पर उनमें आत्मसम्मान की तीव्र भावना थी। यही वह धारणा थी जो भारतीय शरणार्थियों के बारे में लेखक के मन में बनी रही। टू पुल अप मीन्स फटकारना, टू पुल डाउन मीन्स गिराना, टू पुल विथ मीन्स टू इम्प्रूव वंस पोजीशन, स्थिति सुधारना। टू मेक अप मीन्स कमी पूरी करना। टू मेक आउट मीन्स समझ लेना, निष्कर्ष निकालना। टू मेक फॉर मीन्स आगे बढ़ना। टू रन डाउन मीन्स कमज़ोर हो जाना। टू रन आउट मीन्स खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। टू रन ऑफ मीन्स भाग जाना। टू कॉल अपॉन मीन्स मिलने जाना। टू कॉल आउट मीन्स जोर से पुकारना। टू कॉल ऑफ मीन्स समाप्त करना। WINE बाइन मीन्स शराब। BINE बाइन मीन्स अंगूर की बेल। इनको यूज करना है वाक्यों में। और जो मैंने ऊपर वाले बताए जैसे टू कॉल अपॉन मिलने जाना, ये भी यूज करना है। LOSE लॉज मीन्स खोना। LOOSE लूज मीन्स ढीला। PLAIN प्लेन मीन्स सादा। PLANE प्लेन मीन्स हवाई जहाज। FEET फीट मीन्स फुट का बहुवचन। FEAT फीट मीन्स करतब। रूट मीन्स जड़। ROUTE रूट मीन्स रास्ता। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। आस्क का इंक्वायर होगा, जंगल का फॉरेस्ट होगा, सेक्रेड का पायस होगा, शाउटिंग का कॉलिंग होगा, पीसेंट्स का फार्मर होगा, एनुअल का ईयरली होगा, हार्ड का स्ट्रेनुअस, बेग्ड का इम्प्लोर्ड, बॉट का परचेज्ड, इंडिपेंडेंस का फ्रीडम और अपोजिट है क्लोज का ओपन, अपोजिट का फेवरेबल, लूज का टाइट, मेजर का माइनोर, रिचेस्ट का पुरेस्ट, अनब्रोकन का ब्रोकन, गैदर्ड का स्कैटर्ड, अनस्किल्ड का स्किल्ड, कंप्लीटली का इनकम्प्लीटली, ऑफेंस का डिफेंस, अनएजुकेटेड का एजुकेटेड। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स मीन्स किसी की भावना को जानना।
इनको यूज करना है वाक्य में। जैसे द राइटर टॉक्ड टू द पीपल टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द इंडियंस। टू रिंग द WRING टू रिंग द हार्ट, हृदय द्रवित कर देना। ऑन द ईज ऑफ, बिल्कुल समीप या किनारे पर। टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ मीन्स एक झलक पा लेना। ए हैंडफुल ऑफ मीन्स मुट्ठी भर, थोड़ी सी। ROUT रूट मीन्स रास्ता। SWOLLEN सोइल मीन्स सूझ गया, उमड़ पड़ा। CLUMP क्लम्प मीन्स झुंड। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। बाई द बे साइड मीन्स सड़क के किनारे। टू मेक ए लिविंग मीन्स धन कमाने के लिए। अकस्टम्ड मीन्स टू किसी बात के लिए अभ्यस्त होना। पैक्ड मीन्स ठूस ठूस कर भरा होना। बेयर फुट मीन्स नंगे पैर। ओवरफ्लो मीन्स उफन कर या फैल कर बहना। टू लीव फॉर मीन्स कहीं को चल देना। पुल्ड अप देयर रूट्स मीन्स सब कुछ छोड़कर चल देना। टू रीच इनटू मीन्स पहुँचना, पहुँचाना। फैंटास्टिसिस मीन्स धर्म का उन्माद। एग्रेसिव मीन्स आक्रामक। हॉरिजन मीन्स होता है पॉइंट वेयर द स्काई एंड द अर्थ अपीयर्स टू मीट। ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट। इंटरप्ट मीन्स ऑब्स्ट्रिक्ट। Diligent means hard working. Passion means strong emotion. Glimpse means a brief view. Implore means beg earnestly. Silt means loose sand, soil, etc. Clump means cluster. Vines means creepers. Drab means monotonous, uninteresting. Trek means make a long journey on foot. Alight means come down. Thanks, best of luck.